Okay, welcome to this problems of gaseous state. Gas law we have discussed already. हमने पिछली क्लास में गैस लॉ डिस्कस किए जिसमें बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एमेगट्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, डाल्टन्स लॉ, ग्राम्स लॉ। तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम हम अभी डिस्कस करेंगे। तो जैसे ये फर्स्ट प्रॉब्लम है, एंड इन द फर्स्ट प्रॉब्लम वी कैन सी कि uranium reacts with fluorine to produce a compound that is a gas at 57 degree centigrade temperature. So T is given, that is T will become here how much 57 plus 273, क्योंकि हमको सारी चीजें SI यूनिट्स में यूज करनी है या जो भी परमिटेड यूनिट्स है। तो दिस विल बिकम हाउ मच 7 plus 3 10 and 7 5 12 plus 1 13 330. So 330 Kelvin temperature is given here. The density of this gas, density is given, that is in gram per liter it is given 13.0 gram per liter. और क्या दिया हुआ है? P is given 1 atmosphere. तो अगर हम अप्लाई करें, if we apply the gas equation, so what we can calculate? At this temperature the density is given, so directly we can calculate the molecular mass of this. So we are having the formula Pm equals to dRT, and M will become dRT by P. तो यहाँ पर ये देखें कि M equals to D is given how much 13.0, R is 0.0821. Temperature we have already calculated 330 divided by pressure is 1. तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो we will have what? इन सबको मल्टीप्लाई करें, that is 13.0 into 0.0821 into 330. So this value is coming molecular weight 352, and the molecular weight will be equals to atomic weight of uranium plus suppose X. X is the number of fluorine atom. So fluorine atom will be how much? This will be atomic mass of fluorine. Atomic mass of fluorine. So this quantity is 352 equals to 238 plus X into fluorine is 19. तो X का वैल्यू कितना हो जाएगा? 352. This is 352 माइनस ये वाला क्वांटिटी माइनस हो जाएगा इसमें से, तो 238 डिवाइडेड बाय 19. तो दिस वैल्यू इज कमिंग, X का वैल्यू यहाँ से 6 आ रहा है। इसका मतलब फॉर्मूला जो होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गैस का वो UF6. So this question is clear to everybody. Simple question. Now we can go for the next problem. Next problem is, here we can see methane combines with oxygen to produce carbon dioxide and water. When 3.0 liter of methane is burned with 5 liter of oxygen, how many liter of CO2 are formed? Assuming that the volumes of all gases are measured at 400 atmosphere and this all gases are measured at the same temperature. तो reaction क्या होगा? That is the CH4 plus O2. This will form CO2 plus
H2O, हाउ मेनी H2O? 2 H2O। तो यहाँ पर O2 के जो मोल्स होंगे वो 2 होंगे इसमें। और क्या क्या चीजें अवेलेबल है? वॉल्यूम ऑफ दिस वन इज 3 and the volume of this one is what? 5. So we are having the limited amount of oxygen, that is कि 3 लीटर CH4 को रिएक्ट करने के लिए we need 6 liters of O2 gas, but we are having only 5 liter. तो इसका मतलब ऑक्सीजन इज एक्टिंग एज द लिमिटिंग रिएजेंट। तो 5 लीटर ऑक्सीजन will burn 2.5 liter of this CH4. Is it clear? And what he is asking, how many liter of CO2 are formed? तो इससे कितना लीटर CO2 फॉर्म होगा? क्योंकि 1 लीटर इज प्रोड्यूसिंग 1 लीटर ऑफ CO2। कोफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स आर सेम। तो 2.5 लीटर से कितना प्रोड्यूस होगा? 2.5 लीटर ओनली। तो क्या आंसर हो जाएगा? यहाँ पर आंसर डी था, यहाँ पर आंसर ए। और चेक कर लेते हैं आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 आंसर इज डी, क्वेश्चन नंबर 2 आंसर इज ए। आई थिंक इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? इसके बाद देखें हम नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज the first step of the Ostwald process for making nitric acid involves a reaction between ammonia and oxygen to form nitrogen dioxide and water. तो ये Ostwald's process होता है नाइट्रिक एसिड फॉर्म करने के लिए। How many liters of O2 gas at 650 degrees centigrade and 1 atmosphere pressure are needed to react with 48 liters of NH3 at the same temperature and pressure? तो 48 लीटर ऑफ NH3 के साथ में हमारे पास में कितना O2 चाहिए होगा ये पूछ रहा है। तो फॉर सच टाइप ऑफ रिएक्शन क्या करें? यहाँ कोफिशिएंट 5, यहाँ कोफिशिएंट इधर कोफिशिएंट 4 है, हियर कोफिशिएंट इज 4, हियर 5। अब मान लो कि इसका वॉल्यूम हमने लिया V1, इसका वॉल्यूम लिया V2, तो V1 विल बी इक्वल्स टू V2। और कब बराबर होंगे ये दोनों वैल्यू? जब हम दोनों के कोफिशिएंट्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। सिंपल थिंग। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे V1 को 5 से और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। व्हाट इज आस्किंग कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ O2, यानी कि वॉल्यूम ऑफ O2 ही इज आस्किंग टू रिएक्ट विद 48 लीटर्स ऑफ दिस। तो V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 into 4 सॉरी 48 डिवाइडेड बाई 4। तो 12 4 जा 48, तो इससे ये 12 टाइम कैंसिल एंड 12 5 जा 60 लीटर्स। तो 60 लीटर वॉल्यूम विल बी रिक्वायर्ड for O2 by for reaction of 48 liters of this ammonia। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या है? देखो डी, डी मींस 60 लीटर्स, 60 लीटर आंसर। इसके बाद देखें हम हाइड्रोकार्बन इज एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक मींस कि वो बेहोशी में यूज किया जाता है। तो यहाँ पर देखें हम, और इसके में क्या है कि 85.63% कार्बन है, 14.37% हाइड्रोजन बाय वेट। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला if 0.45 liter of hydrocarbon reacts with excess of oxygen at 120 degrees centigrade and 0.72 atmosphere to form 1.35 liter of carbon dioxide and 1.34 liters of water vapor। अब ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा लेंथी हो रखा है, तो मैं यहाँ पे बता दूं कि पहले वी कैन कैलकुलेट इट्स इंपिरिकल फॉर्मूला। इंपिरिकल फॉर्मूला से हमें ये जो डेटा दिया हुआ है
we can determine its molecular weight. That is the PV equals to nRT, and volume is given, and this is 0.45 liter hydrocarbon. Reacts with excess of 120 degree centigrade temperature, and the pressure is also given. तो सेम प्रेशर पे हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे. यहाँ से मैं ये हिंट दे देता हूँ कि लेंदी है प्रॉब्लम, आप लोग ट्राई कर लेना. तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे इस कंपाउंड के. नंबर ऑफ मोल्स से हमें पता चल जाएगा इसका मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि बैलेंस रिएक्शन लिख लेंगे हम, क्योंकि दिस इज CxHy प्लस O2 is converted to XCO2 plus O2, and it is converted to what? Sorry, H2O. ये क्या है? H2O. This is H2O. तो कितने मोल्स होंगे इसके Y/2? तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी X plus Y/4. O2 will be required. In that way you can calculate. So इसमें जो प्रॉब्लम है एक्चुअली वो यूडियोमेट्री वाले हैं, and we have to discuss the problems of gas laws. एक मिनट. हाँ, ये गैस लॉज के प्रॉब्लम यहाँ से. A balloon is filled with He to a pressure of 1.06 atmosphere. The volume of the balloon at 25 degrees centigrade is this much. The volume of the balloon. How many cylinders of He gas are needed to fill the balloon if the pressure in the cylinder at 20 degrees centigrade is 98.5 atmosphere and volume of the cylinder is 40 liter. तो क्या करेंगे हम कि दिस प्रेशर इज रिक्वायर्ड, ये प्रेशर पे हमें बैलून को भरना है, एंड द वॉल्यूम ऑफ द बैलून एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका वॉल्यूम इतना है. तो क्या करें, PV इक्वल्स टू nRT. यहाँ से हमने एन टोटल निकाल लिया बैलून के अंदर, PV/RT. और छोटा जो सिलेंडर है उसके अंदर भी नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर ले. दैट इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर है वो, और 98.5 एटमॉस्फेयर, और इसका वॉल्यूम दिया है. तो हम एन ऑफ स्मॉल सिलेंडर, तो ये हो जाएगा P कितना है इसका 98.5 इंटू वॉल्यूम इज 40 डिवाइडेड बाई R वैल्यू. R तो कैंसिल हो जाएगा बाद में चल के. 98.5 इज द सॉरी 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज द टेम्परेचर. सो 273 प्लस 20 कितना हो जाएगा 293. तो सिमिलरली यहाँ पर NT की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, P इज गिवन 1.06 इंटू इसका जो वॉल्यूम दिया हुआ है वो 1.30 इंटू 10 पावर 4 डिवाइडेड बाई R, एंड T इज हाउ मच 25, दैट इज 298. तो क्या करेंगे, दैट इज द नंबर ऑफ वैल्यूज इज X सपोज. तो टोटल मोल्स बड़े वैल्यून में डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स इन स्मॉल सिलेंडर. तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.06 इंटू 1.30 इंटू 10 पावर 4 डिवाइडेड बाई R इंटू 298 डिवाइडेड बाई ये NS वैल्यू कितना है, ये वाले से डिवाइड कर रहा है मैं NS से. यहाँ पर देखो तो इसकी वैल्यू कितनी है 98.5. जैसे 98.5 इंटू 40 अपॉन R इंटू 293. तो देखो R तो ये कैंसिल आउट हो गया. अब इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी है, तो क्या करें, मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं टाइम सेव करने के लिए.
तो 1.06 इंटू 1.3 और इसको मल्टीप्लाई कर दें इंटू 293 से, इंटू 293। अब नाउ दिस हैज टू बी डिवाइडेड, या इसको और मल्टीप्लाई कर लें 10,000 से, 10,000। तो ये आ गया। आफ्टर दिस वी विल डिवाइडेड बाय 298, फर्दर डिवाइडेड बाय 98.5, फर्दर डिवाइडेड बाय 40। तो इसकी वैल्यू आ रही है 3.43। तो अप्रोक्सीमेटली आंसर हो जाएगा हमारा 3 के यू मे हैव सम He लेफ्ट इन वन ऑफ द सिलेंडर, क्योंकि वन ऑफ द सिलेंडर में कुछ He लेफ्ट रहेगा। तो वो कितना लेफ्ट रहेगा? 40 लीटर्स लेफ्ट रहेगा। तो टोटल जो आएगा उसका वो 40 से माइनस कर देंगे, इसका मतलब कुछ उसमें रह जाएगा 1 एटमॉस्फेयर तक। तो ये आंसर आ जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या दिया हुआ है इन्होंने? 3.4387 is maybe calculation mistake. 40 liter is there, 98.5 we have taken. तो इस तरह से कैलकुलेशन आप लोग देख लेना। तो इट मे बी 3, क्योंकि 4 तो नहीं आएगा, आंसर क्या रहेगा? 3 रहेगा, बिकॉज वी आर गेटिंग लेस देन 3.4 वैल्यू। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये भी इसी तरह का प्रॉब्लम है। और मैं कुछ डायरेक्ट प्रॉब्लम देखता हूँ इसमें, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी है। ये क्या दिया हुआ देखो, इन द फॉलोइंग फिगर व्हेन टू स्टॉप कॉक्स आर ओपन, इन दोनों को ओपन करेंगे तो टोटल प्रेशर इनसाइड द फ्लास्क विल बी। तो टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा? इसका ये वैल्यू दिया हुआ है, ये वैल्यू दिया हुआ है, ये वैल्यू दिया हुआ है। तो इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा? N1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? PV इक्वल्स टू RT, तो PV अपॉन RT रहेगा। N2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? P1 V1 बाई RT सेम। N3 की वैल्यू कितनी होगी? P2 V2, दिस विल बी P3 V3 बाई RT। तो N टोटल की वैल्यू जो आएगी हमारे पास वो कितना हो जाएगा? N1 प्लस N2 प्लस N3। और इसकी वैल्यू कितनी होगी? सबका वॉल्यूम एंड सबका प्रेशर। तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी? दैट इज, क्या पूछ रहा है? सबका इन द फॉलोइंग द टोटल प्रेशर वी हैव टू कैलकुलेट PT इनटू VT। RT कैंसिल हो जाएगा सारे केसेस में। तो क्या होगा ये कि P1 V1 बाई RT प्लस P2 V2 बाई RT प्लस P3 V3 बाई RT। RT इज कैंसिल्ड आउट। और V टोटल कितना है हमारे पास में? दैट इज द P टोटल हो जाएगा, P1 is 2.13, P1 is 2.13 इंटू V1 कितना है? 1.5 लीटर्स प्लस P2 कितना है? 0.861 इंटू वॉल्यूम 1 लीटर प्लस P3 कितना है? 1.115 एंड वॉल्यूम इज 2.0 लीटर। अब इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा ये देखते हैं। 2.13 इंटू 1.5, 3.195 आया। प्लस कर दे इसमें 0.861। इसके बाद लास्ट वाले में वैल्यू कितना है? 1.15 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा? 2.30। तो प्लस 2.30 और कर दें
2.30 ये आया 6.356। तो ये टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाई हमें बी टोटल और करना है इसको। तो पी टोटल की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 6.056 एक सेकेंड, दिस इज 6.356 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम कितना है टोटल 1.5 इधर है, 2.0 इधर और 1.0, तो ये कितना हो जाएगा 4.50 लीटर। तो इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ 4.50 से, तो ये आ गया 1.41। तो आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हम ये सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सारे प्रॉब्लम में शेयर कर दूंगा, अगर आप लोग मेरे को मैसेज करेंगे एट द व्हाट्सएप नंबर 7032212709 पर आप मैसेज कर दीजिए। आई विल शेयर ऑल दीज असाइनमेंट्स टू एवरीबॉडी। अब मैं ये लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करता हूँ। ओके, मीटिंग एंड करते हैं।